السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، ہادی دو عالم، نور مجسم، شافع امم، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اپنی زندگی کی تمام راتوں میں سے ایک رات کو حسین و جمیل بنا رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ کانفرنس میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے ان بچوں کے سروں پہ جشن دستار حفظ کا تاج زریں رکھا جائے گا جنہوں نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد ہندوستان کے وہ عظیم خطیب جو انگلش بولے تو بولتے رہیں، سنسکریت بولے تو بولتے رہیں، اردو، عربی، کئی زبانوں پہ جس ذات کو عبور حاصل ہے اور پورے بھارت میں واحد ایسی شخصیت ہے جن کا نام صرف لکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس ذات کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ احساس کرتے ہیں کہ واقعی میں اگر پڑھا لکھا کوئی بدوان، پڑھی لکھی کوئی شخصیت ہے تو حضور نقیب الاولیاء حضرت علامہ ڈاکٹر جوہر میاں صاحب قبلہ شفیع آبادی کی ذات ہے۔ انشاءاللہ آپ ان سے میرے بعد گفتگو سماعت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ خطیب الہند، خطیب یورپ و ایشیا، پیر طریقت حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ کلکتہ بنگال، شاعر ہندوستان حضرت قاری اختر ضیاء صاحب قبلہ مظفر پوری، حضرت جوہر مظفر پوری، ماشاءاللہ ان بزرگوں کی نعتیں آپ سماعت کریں گے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ماسٹر شاہ نواز صاحب قبلہ کی بہت اچھی نظامت، نقابت آپ سماعت کر رہے تھے۔ ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں، بھیگ کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ چراغ عشق نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے، حقیر جان کر جنہیں بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی رہبری کے لیے جس عظیم ذات کو اس خاکے گتی پر مبعوث فرمایا اسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے۔ 40 سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور 23 سال
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से भी तबलीग की और किरदार से भी तबलीग की। सुभान अल्लाह। हम जिस मुल्क में जी रहे हैं, ये जो दौर चल रहा है, ये दौर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का दौर चल रहा है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुफक्किर हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब क़िबला भी कुछ दिनों पहले हम लोग सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को इस वक्त आका की मक्की ज़िंदगी को पढ़ने की भी ज़रूरत है और सुनने की भी ज़रूरत है। जी जी बेशक। मैं चाहता हूँ कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आका की मक्की ज़िंदगी से करूँ, ताकि समझे। अल्लाह ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया कि महबूब पूरी दुनिया के लोगों से ऐलान कर दीजिए, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम सब के तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, ताकि लोगों के ज़हन से ये बात निकल जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसी खास ज़ात के लिए, किसी खास मजहब के लिए, किसी खास इलाके के लिए, किसी खास धर्म के लिए नहीं, बल्कि ये तो सारी दुनिया के इंसानों के लिए रहबर और रहनुमा बनकर आए हैं। सारी दुनिया के इंसानों के लिए गुरु और उस्ताद बनकर के आए हैं। यही वजह है कि आका को मुअल्लिम कायनात कहा जाता है। ऐ नबी आपके आने का मकसद क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान उसका जिक्र यूं करता है, युज़क्किकुम, ये नबी इसलिए आए ताकि तुम्हारे मन को अच्छा बना दे, तुम्हारे तन को अच्छा बना दे, तुम्हारे समाज को अच्छा बना दे, तुम्हारे माहौल को साफ और सुथरा बना दे। इसलिए इन जलसों का मकसद ये नहीं है कि कहीं मेला लगे जिलेबी खरीदे घर चले जाएंगे, बल्कि ये जलसों का जो आयोजन होता है, इन जलसों का जो इनेकाद होता है, इन जलसों का मकसद ये है कि यहाँ से जब हम जाएं तो हमारे समाज में परिवर्तन आए, हमारी जिंदगी में इनकलाब हो। हम यहाँ से जाएं तो कुछ सीख लेकर के जाएं, कुछ करने का इरादा लेकर जाएं, ताकि ये जो लाखों नहीं कई लाख रुपए खर्च हुए हैं ये पैसे बर्बाद ना हो, बल्कि लोगों को कुछ ज्ञान मिले, लोगों को कुछ शिक्षा मिले। हर इंसान कामयाबी चाहता है, लेकिन गौर से सुनिएगा, समाज बदलना हर शख्स की जिम्मेदारी है। हर बाप चाहता है कि मेरे घर वालों की जिंदगी बदल जाए, गांव का मुखिया चाहता है कि गांव का माहौल अच्छा हो जाए, स्कूल का टीचर चाहता है कि स्कूल का माहौल अच्छा हो जाए, मदरसे का मुदर्रिस चाहता है कि मदरसे का माहौल ठीक हो जाए, गांव के लोग चाहते हैं कि गांव की सोसाइटी और माहौल ठीक हो जाए। ऐसे ही अल्लाह ने चाहा कि पूरी दुनिया में जो बुराई है, लोग शराब पीकर दौड़ रहे हैं, लोग जुआ खेल रहे हैं, एक बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहा है, एक बीवी को उसके शवहर के चिता पे जला दिया जा रहा है, एक बाप एक बेटा अपनी माँ को नौकरानी बनाकर अपने साथ रख रहा है। इस बिगड़े हुए माहौल को संवारा कैसे जाए? तो उसी बिगड़े हुए माहौल को संवारने के लिए अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। कहा, ओ मेरे महबूब, मैं आपको इसलिए इस पृथ्वी पर और जमीन पर भेज रहा हूँ ताकि लोगों को शराब खाने से निकाल कर बाहर ले आइए, लोगों को जुआ खाने से निकाल कर बाहर ले आइए, लोगों को अंधकार से निकाल कर बाहर ले आइए, लोगों को बताइए कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है। आप जो जिंदगी जी रहे हैं ये इंसानियत नहीं है, बल्कि जिंदगी ये है जिसे मैं बता रहा हूँ। अब जरा गौर से सुनेंगे, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में और जिस बिगड़े हुए माहौल में आए, साहब वो वक्त कितना बुरा था जब इंसानों के हाथों गुलाम बना करके बेचा जाता था। आज गाड़ियां बिकती हैं, आज साहब मोटरसाइकिलें बिकती हैं, जानवर बिकते हैं, मगर उस जमाने
जमाना था कि इंसान इंसानों के हाथों बिकता था, इंसान इंसानों के हाथ बेच दिया जाता था। ऐसे आलम में जब समाज इतना बिगड़ जाए कि एक इंसान दूसरे इंसान को बेचने लगे, एक बेटा माँ पे जुल्म सितम करने लगे, ऐसे माहौल में समाज को बदलना इतना आसान नहीं है साहब। समाज को परिवर्तन में लाना इतना आसान नहीं है, कितना कठिन काम है साहब। ये किसी उस्ताद से पूछिए, किसी मास्टर से पूछिए, किसी मुदर्रिस से पूछिए, किसी पीर से पूछिए, किसी सरपरस्त से पूछिए। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु लोगों को बताते लोगों शराब पीना हराम है तो लोग राह में कांटे बिछा देते। जब आका कहते कि जुआ खेलना हराम है तो आका के जिस्म पे पत्थर बरसाए जाते। जब आका फरमाते कि सच्चाई की जिंदगी जिए क्यों अंधकार में जीते हो तो लोग माज़अल्लाह आका को मजनू, पागल और दीवाना कहते। ऐसे माहौल में, बिगड़ते हुए माहौल में भी मुस्तफा जाने रहमत इस्लाम की सच्चाई की तबलीग कर रहे हैं। कहते हैं लोगों याद रखना, तुम एक खुदा को मानने वाले हो जाओ, उसकी इबादत और प्रस्तिश करो, कलमा पढ़ो, वो भी पाक है, तुम भी पाक साफ बन करके रहो, तेरी दुनिया व आखिरत कामयाब हो जाएगी। कौन था जो नबी की बात मानने को तैयार होता? बड़े कम लोग आका की बात मानने को तैयार हुए। इतने में एक शख्स रोता हुआ आका की बारगाह में आता है, आकर अर्ज करता है आका जी क्या मैं कलमा पढ़ लूं तो मेरे सारे पाप माफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मेरी खताएं माफ हो जाएंगी? आका फरमाते हैं बेशक जो अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके हाजिर हो जाता है अल्लाह उसकी खताओं को माफ कर देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। वो कहता है या रसूल अल्लाह मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे नहीं लगता कि मेरी माफी मुमकिन है। कहा तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है? कहता है आका जी मैं एक ताजिर था, बिजनेसमैन था, मेरी बीवी हमल से थी, उम्मीद से थी, डिलीवरी से थी, मेरी बीवी उम्मीद से थी। आका जी मैं तिजारत बिजनेस को जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी से कहा सुनो अगर बेटी पैदा हो तो जिंदा मार देना, अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना। आका मैं तो कह के घर से चला गया, महीनों लंबा सफर था, चूंकि पहले हर गांव में तो तिजारत का माहौल था नहीं, कहीं कोसों दूर लोग जाते तो तिजारत करते थे, 6-6 महीना साल साल भर ताजिर तिजारत ही करते रहते थे, 6-6 महीने बाद वापसी होती थी। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में जब एक बाप अपनी बीवी से ये कह करके जाए कि बेटी पैदा हो तो मार देना, सोचो माहौल कितना बिगड़ा हुआ था। ऐसे माहौल में आका फरमाते हैं फिर क्या हुआ? कहता है आका जी मैं चला गया, कुछ दिनों के बाद मेरी वापसी का वक्त आया, लेकिन ए आका मैं जानता था कि एक बाप तो अपनी बेटी का गला दबा सकता है, लेकिन माँ की ममता कभी इस बात को गवारा नहीं करेगी कि एक माँ अपने हाथों से बेटी का गला दबा दे। आका जी मेरे घर बेटी पैदा हुई और मेरी बीवी ने मेरे खौफ से, मेरे डर से मेरी बेटी को उठाकर पड़ोस में रख दिया ताकि मेरी नजर उसकी बेटी पर न पड़े। कुछ दिनों के बाद मैं वापिस आया, पूछा ए मेरी शरीके हयात बताओ तूने किस बच्चे को जन्म दिया? मेरी बीवी बोल पड़ी मैंने बेटी को जन्म दिया था, उसे मार दिया। आका मैं वो जालिम बाप हूँ कि मेरी बीवी मेरे खौफ से झूठ बोलती रही, लेकिन पड़ोस में एक बच्ची रहती थी, मेरे पास रोजाना आती, मैं उससे आका बहुत प्यार करता, बहुत मोहब्बत करने लगा। एक रोज मेरी बीवी को यकीन हो गया कि मेरा शौहर मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है। मेरी बीवी ने पूछा बताओ ये बच्ची तुझे कैसी लगी? मैंने कहा ये बच्ची बहुत नेक है, बहुत अच्छी है, इसे देखता हूं तो दिल को सुकून मिलता है, न देखूं तो दिल परेशान रहता है, इसे देखकर दिल को करार मिलता है। मेरी बीवी को यकीन हो गया कि अब मेरा शौहर जिस बच्ची से इतनी मोहब्बत करता है इस बच्ची का गला नहीं दबाएगा, इसे नहीं मारेगा। मेरी बीवी को जब यकीन हुआ तो मेरी बीवी बोल पड़ी ए मेरे शौहर सुनो तुम जिस बच्ची से इतनी मोहब्बत करते हो ये बच्ची किसी और की नहीं, ये आप ही की बेटी है। आका जी मेरे सर पर कुफ्र सवार था, शैतान हमला आवर हुआ, जब मैंने सुना कि ये मेरी बेटी है तो आका मेरे
ऊपर शैतान सवार हो गया और मैं एक हाथ में कुल्हाड़ी लिया, फावड़ा लिया और एक हाथ में बेटी की कलाई पकड़ी और लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। बोलकर ज़ारो कतार रोता जाता और बोलता जाता। आका फरमाते हैं फिर क्या हुआ? कहता है आका मैं जंगल की तरफ जब जाने लगा, मेरी बीवी रोकती रही मगर मैं नहीं रुका, मेरी बेटी पूछती रही मगर मैं नहीं रुका। आका जब मैं जंगल में पहुंचा, अपनी बेटी को बैठा दिया और वहीं पे मैंने बेटी को दफन करने के लिए गड्ढा खोदने लगा। आका जी जब मिट्टी के ज़र्रात मेरे जिस्म पर पड़ते, मिट्टी के गर्दो गुब्बार, तो मेरी बेटी अपनी छोटी छोटी हाथों से मेरे कपड़े को साफ कर देती। आका जब पत्थर उड़कर पड़ते तो मेरी बेटी पत्थर हटाती और कहती मेरे बाप इतनी तकलीफें क्यों उठा रहे हो। जब आका सुने कि एक बाप अपनी बेटी के लिए बेटी के दफन के लिए गड्ढा खोद रहा है, आका ज़ारो कतार रोने लगे। आज तो हम किसी का दुख सुनकर नहीं रोते, आज हम किसी की तकलीफ को सुनकर के नहीं रोते, आज दूसरों की मुसीबत को सुनकर हमारे आंखों में आंसुओं के कतरात नहीं आते। साहब याद रखिए, अगर दूसरों की मुसीबत सुनकर हमारे आंखों में आंसू नहीं आए तो समझ लीजिए कि हम भी मर चुके हैं, हमारा ज़मीर भी मर चुका है, हम भी मुर्दा है, हमारा किरदार भी मुर्दा है। लेकिन जिस दिन दूसरों की तकलीफ सुनकर, दूसरों की परेशानी सुनकर हमारा दिल दुखी हो जाए और हमारी आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाए तो समझ लेना कि तू भी जिंदा है, तेरा ज़मीर भी जिंदा है, तू भी जिंदा है, तेरा किरदार भी जिंदा है। जब आका रोने लगे तो साहब उनके साथ मिलकर सुनकर सहाबा भी रोने लगे। आका कहते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक बाप अपने हाथों से बेटी को जिंदा दफन कर दे? ऐसा भी हो सकता है कि एक बाप अपने हाथों से बेटी को दफन करने के लिए गड्ढा खोदे? हाँ आका जी, वो जालिम बाप मैं ही हूँ, मैंने ही अपनी बेटी के लिए गड्ढे खोदे हैं आका। इतना सुनना था, आका रोने लगे। अब वो इंसान कहता है आका मैंने गड्ढा खोद डाला, अपनी बेटी को उठाकर उसमें जिंदा डाल दिया। मेरी बेटी पूछती रही मेरे बाप बताओ आखिर मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो? क्या बेटियों को समाज में जीने का हक नहीं है? बेटियों को जमीन पर जीने का हक नहीं है? बेटियां समाज में जीने के लिए नहीं आई? ए मेरे बाप कब तक बेटियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा? कब तक बेटियां मारी जाती रहेंगी और सताई जाती रहेंगी, जलाई जाती रहेंगी? आका फरमाते हैं फिर क्या हुआ? कहता है आका मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, मिट्टी डाल दी, मगर आका आज भी मेरी बेटी की आवाज मेरे कानों से टकराती है। न मुझे दिन को सुकून मिलता है न रात को सुकून मिलता है। आका क्या अल्लाह मेरी खता को माफ कर देगा? इतना सुनना था। आका जलाल में है, खड़े हो गए, कहा बेशक जो लोग कलमा पढ़कर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे अल्लाह उनकी खताओं को माफ कर देगा। मगर सुनो आज के बाद यहाँ पे कानून बदल जाएगा, जीने का तरीका बदल जाएगा, जिंदगी का सलीका बदल जाएगा। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह क्या बदल जाएगा? कहा आज के बाद बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी, बेटियां दफनाने के लिए नहीं आई है बल्कि बेटियां डोलियों में सजाने के लिए आई है। नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा आज के बाद मिजाज और तरीका बदल जाएगा। ये बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी, ये बेटियां जलाई नहीं जाएंगी, ये बेटियां सताई नहीं जाएंगी बल्कि बेटियां डोलियों में सजाई जाएंगी। कहा आका फिर? कहा याद रखना, याद रखना, पूरी दुनिया में ऐलान कर दो कि जब तक मैं हूं कोई किसी की बेटी को दफना नहीं सकता है, कोई किसी की बेटी को जला नहीं सकता है, कोई किसी की बेटी को जिंदा दफन नहीं कर सकता है। सुनो सुनो, तुम क्या समझते हो ये बेटियां जहमत बनकर नहीं आई है, ये बेटियां खुदा की रहमत बनकर आई है। आका फरमाते हैं कि सुनो जिसके घर में बेटा पैदा होता है अल्लाह एक रहमत नाजिल फरमाता है और बेटी पैदा होती है तो अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आका फरमाते हैं कि आज के बाद ऐलान कर दो जिसके घर में बेटा भी हो और बेटी भी हो, जब बाहर से कोई गिफ्ट और सामान लेकर आए तो बेटी को पहले दे और बेटे को बाद में दे। अल्लाहु अकबर। आका का जब ऐलान हुआ
फिर जब आका ने ऐलान किया, कहा तुझे पता है अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी, उन्होंने बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनका रिश्ता कर दिया, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। इतना सुनना था, एक सहाबी खड़े हुए, कहा आका जी जिसके पास 2 बेटियां हो, कहा खुदा उसे भी जन्नत देगा। कहा जिसके पास 1 बेटी हो, कहा खुदा उसे भी जन्नत देगा। कहा आका जिसके पास बेटी नहीं हो, नबी फरमाते हैं तुम दूसरों की बेटी को बेटी बना लो, खुदा तुझे भी जन्नत देगा। साहब जब आका ने ऐलान किया कि दूसरों की बेटी को भी बेटी बना लो, तो अब जरा गौर से सुनिएगा, एक ऐसी बच्ची नबी की बारगाह में लाई गई जिसका बाप दुनिया में नहीं था, जिसकी माँ दुनिया में नहीं थी। अल्लाह अकबर। जब वो बच्ची लाई गई तो आका की बारगाह में लाई गई, आका जी क्या कोई ऐसा भी शख्स है जो इस बच्ची का बाप बनना पसंद करेगा? क्या कोई ऐसी औरत है जो इस बच्ची की माँ बनना पसंद करेगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में खड़े हुए ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा गौर से मेरी तरफ देखो, क्या तुम में का कोई ऐसा शख्स है जो इस बच्ची का बाप बनना पसंद करेगा, जिसकी बीवी इसकी माँ बनना पसंद करेगी? इतना ऐलान करना था कि हर शख्स अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। अब वो लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे आज आका के सामने खड़े हैं। कोई कहता आका मेरे पास 4 बेटियां हैं, एक और दे दीजिए। कोई कहता आका 3 बेटियां हैं, एक और दे दीजिए। कोई कहता आका 2 बेटियां हैं, एक और दे दीजिए। कोई कहता आका 1 बेटी है, एक और दे दीजिए। कोई कहता आका मैं बेटी वाला नहीं, एक बेटी दे दीजिए, मैं भी बेटी वाला हो जाऊं। डॉक्टर इकबाल जब इस मंजर पर पहुंचे तो बोल पड़े, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया। साहब फिर क्या था, पूरी दुनिया में इनकलाब आया, हर बाप बेटी से मोहब्बत करने लगा, हर माँ बेटी से प्यार करने लगी। नतीजा ये निकला कि पूरी दुनिया में मुसलमान बेटियों को रहमत कहते हैं और हिंदू बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं। साहब क्रिश्चियन बेटियों को गॉड गिफ्ट कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मोहब्बत के इस चिराग को जलाया तो आज पूरी दुनिया में देखिए, चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, क्रिश्चियन की बेटी हो या ईसाई की, अब दुनिया में किसी की बेटी दफनाई और जलाई नहीं जाती है, बल्कि सबकी बेटियां दुल्हन बनाई जाती है। अब किसी का बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से दफन नहीं करता, लेकिन आज साफ अफसोस होता है, एक बाप तो अपनी बेटी को दफन नहीं करता, लेकिन आज साहब लड़के वाले दूसरों की बेटियों को दफन कर रहे हैं। आज साहब लड़के वाले दूसरों की बेटियों पे जुल्म सितम कर रहे हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ये जरा गौर से सुनिएगा। आका ने जब मोहब्बत के इस चिराग को जलाया कि बेटियां रहमत है, तो हर बाप बेटी की खुशी चाहने लगा। मुसलमान हो या हिंदू, क्रिश्चियन हो या ईसाई, आज हर बाप बेटी की खुशी के लिए कोई जमीन बेच देता है, कोई साहब सर्विस के पैसे खर्च कर देता है, कोई जिंदगी की सारी कमाई खर्च कर देता है। क्यों? ताकि मेरी बेटी ससुराल में खुशहाल रहे। यही वजह है कि गरीब बाप भी तो 4 कट्ठे बेचकर सोचता है कोई अमीर बेटा मिल जाता शहजादा तो मेरी बेटी उसके घर में दुल्हन बनकर चली जाती। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है मेरी जिंदगी में खुशियां खत्म हो जाए, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी में खुशी पलट कर वापिस चली आए। यही वजह है कि एक भाई अपनी जिंदगी की सारी कमाई बहन की मोहब्बत के लिए खर्च कर देता है। लेकिन बताओ साहब, क्या ऐसा नहीं है कि लोग अपनी बेटियों के प्यार में जमीन बेच देते हैं, जायदाद बेच देते हैं, लेकिन उसी जमीन बेचने वाले और बेटी के बाप के घर जब दूसरे की बेटी बहू बनकर आती है तो न जाने समाज की नजरें तिरछी क्यों हो जाती है। न जाने लोग अपनी बेटियों को तो बेटी समझते हैं मगर आज दूसरों की बेटियों को बेटी नहीं समझते। यही वजह है कि हमारे यहाँ दोनों तरफ हमला है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ तिलक के लिए बेटियां मारी जा रही है और मुसलमानों के यहाँ जहेज के लिए बेटियां मारी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब हमारी बेटी को बेटी का दर्जा मिलना चाहिए तो दूसरे की बेटी को हमारे घर में बेटी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? साहब ये समाज का बहुत बड़ा सवाल है।
बहू और बेटी में बड़ा फर्क है। गौर से सुनिएगा, जो लोग बहू लाने जाते हैं उनका नजरिया ठीक नहीं होता, जो लोग सिर्फ बहू की बात करते हैं उनकी निगाहें अच्छी नहीं होती, जो लोग समाज में सिर्फ बहू की बातें करते हैं साहब उनका दिल और दिमाग अच्छा नहीं होता। आप कहेंगे मौलाना क्यों? जरा गौर से सुनिएगा साहब, हम जिस मुल्क में जीवित है और जिंदा है, यहाँ के राजा का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन है। उनकी अम्मी जान उनके लिए दुल्हन तलाशने के लिए गई। कहाँ गई? सरकार बड़े पीर दस्तगीर के घर गई। जाने के बाद उन्होंने हजरत फातिमा उम्मुल खैर से पूछा कि बताओ अब मुझे एक ऐसी लड़की बताओ जो हाफिजे कुरान भी हो और जिसके पास सीरत फातिमतु ज़हरा भी हो। पूछा उन लोगों ने, आप हाफिजे कुरान और सीरत फातिमा वाली बहू लेकर क्या करेंगी? उन्होंने कहा मालूम है, अगर सीरत फातिमा वाली बहू मिल गई, हाफिजे कुरान मिल गई तो बेटे के लिए दुल्हन बनाऊंगी और अपने जिंदगी भर के लिए उसे बेटी बनाकर घर ले जाऊंगी। पूछा उन लोगों ने, आप तो बहू तलब, आप तो बेटे के लिए दुल्हन ले जाने आई है मगर उसे आप बेटी बनाकर ले जाएंगी? कहा हाँ, बेटी और बहू में बड़ा फर्क है। जो लोग बहू ले जाने आते हैं उनकी नजरें दौलत पर होती है, जो लोग बहू ले जाने आते हैं उनकी नजरें स्कॉर्पियो और बोलेरो पर होती है, जो बहू ले जाने आते हैं उनकी नजरें अपाची और सामने बेटी वालों की दौलत पर होती है। मगर जो लोग बहू नहीं बेटी ले जाने आते हैं वो कहते हैं साहब जब तक आपकी बेटी थी कपड़ा आपने पहनाया, खाना आपने खिलाया, बिस्तर आपने दिया, लेकिन अब मेरे बेटे से आपकी बेटी की शादी हो गई, अब वो लड़की मेरी बेटी बन गई, तो अब मेरी बेटी है तो खाना भी मेरा खाएगी, कपड़ा भी मेरा पहनेगी, मेरे पलंग पर सोएगी, मेरे घर में रहेगी। जब तक आपकी बेटी थी आपने इंतजाम किया है, आज से मेरी बेटी बन गई है तो आज से मैं इंतजाम करूंगा। साहब जिस दिन भारत में ये माहौल पैदा हो गया, भारत में ये संस्कृति जाग गई, लोगों के अंदर ये माहौल पैदा हो गया कि हम आज के बाद बहू लाने नहीं बेटी लाने जाएंगे, तो कसम खुदा की हमारे समाज से जहेज का रस्मो रिवाज मिट जाए, रस्मो रिवाज मिट जाएगा। लेकिन साहब आज अफसोस है, किसे समझाइएगा? कौन है जो मानने को तैयार है? किसकी बातें कीजिएगा? किसे समझाने की बातें कीजिएगा? नहीं साहब, याद रखिए जिंदगी में जब आप किसी की बेटी को बेटी बना करके लाएंगे, कसम खुदा की घर में प्यार वाला माहौल पैदा होगा, घर में मोहब्बत वाला माहौल पैदा होगा, घर में इखलाक और किरदार वाला माहौल पैदा होगा। लेकिन आज साहब लोग ऐसा करते नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दादी जान ने कहा था मुझे बहू चाहिए हाफिज कुरान भी हो और सीरत फातिमा भी हो। उन्होंने कहा अगर सीरत फातिमा वाली बहू मिल गई तो क्या होगा? सुनिए, हजरत फातिमतु ज़हरा कौन है? कायनात के सबसे पढ़ी लिखी औरत का नाम और सबसे कामयाब महिला का नाम हजरत फातिमतु ज़हरा है। मालूम है भारत की सबसे पढ़ी लिखी औरत का नाम इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उन्होंने वहां से चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा जी ने यहां से जवाब लिखा, ए मेरी बेटी इंदिरा, तुझे पता है कि मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया, मगर दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम हजरत फातिमतु ज़हरा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है। साहब इंदिरा गांधी लिखती है क्यों? आखिर उनकी जिंदगी सबसे कामयाब क्यों है? कहते हैं कि एक औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी बनती है, उसके बाद किसी की बीवी बनती है, उसके बाद किसी की मां बनती है। और हर बाप को एक कामयाब बेटी चाहिए, हर शौहर को एक कामयाब बीवी चाहिए, हर बच्चे को एक कामयाब मां चाहिए। दुनिया में मैंने बेटियां बहुत देखी मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। दुनिया में मैंने बीवियां बहुत देखी मगर हजरत मौला अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। दुनिया में मैंने माएँ बहुत देखी मगर हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी।
किसी की मां नहीं देखी। अब जरा गौर से सुनिएगा, कहती है हजरत फातिमा उम्मुल खैर कि अगर सीरत फातिमा वाली बहू मिल गई तो क्या होगा। ए लोगों सुनो, कब तक दौलत के लिए शादियां करते रहोगे, कब तक मोटरसाइकिल और बोलेरो के लिए शादियां करते रहोगे। क्या तुमने कभी सोचा कि तेरी नस्लें तेरी बेटियों से नहीं चलती, बल्कि तेरी नस्लें तेरी बहुओं से चलती है। तेरी आने वाली नस्लें तेरी बेटियों की गोद में नहीं पलती, बल्कि तेरी बहुओं की गोद में पलती है। इसलिए जिस कदर अपनी बेटी से मोहब्बत करना, उतना ही अपनी बहू से भी मोहब्बत करना। अपनी बेटी को भी बेटी बना करके रखना, और दूसरे की बेटी जब तेरे घर में आए तो उसे भी बेटी बना करके रखना। गौर से सुनिएगा, सीरत फातिमा वाली बहू तलाश करके घर में लाइए। दौलत और सरवत का चक्कर छोड़िए, फायदा क्या होगा। साहब कहती है कि सरकार मौलाए कायनात का निकाह हजरत सैयदा फातिमतु ज़हरा से हुआ। साहब सरकार मौलाए कायनात एक रोज मैदान जंग में जा रहे हैं, सफर के लिए रवाना होना है। सरकार मौलाए कायनात ने कहा, फातिमा सफर के लिए कुछ खाना तैयार कर दो, कुछ ज्यादा राह तैयार कर दो। हजरत सैयदा फातिमा दुनिया की सबसे कामयाब औरत और कामयाब बीवी, घर में जितना आटा था सबकी रोटियां बना देती है, बनाकर सरकार मौलाए कायनात को देती है। ऐ मेरे शौहरे नामदार, आप भी खा लीजिएगा, मेरे बाबा को भी खिला दीजिएगा, अपने साथियों को भी खिला दीजिएगा। अपने शौहर को रुखसत कर देती है। सरकार मौलाए कायनात सफर में चले जाते हैं। एक रोज नहीं, दो रोज नहीं, 3 रोज नहीं, 15 दिनों के बाद सरकार मौलाए कायनात वापिस होते हैं। जोरों की भूख लगी है। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा घर में कुछ खाने को हो तो दस्तरखान पे लगा दो। सैयदा फातिमा दस्तरखान बिछाती है, पानी रखती है, आंखों में आंसुओं के कतरात है। सरकार मौलाए कायनात पूछते हैं, ऐ फातिमा तू रो क्यों रही है। कहा, आका मैं वो बीवी हूं कि मेरे शौहर को भूख लगी है, लेकिन आज मेरे पास इतना आटा भी नहीं कि अपने शौहर को रोटी बनाकर खिला सकूं, इसलिए मैं रो रही हूं। काश मेरे पास आटा होता तो शौहर को रोटी बनाकर खिलाती। सरकार मौलाए कायनात ने कहा, कितने दिनों से घर में आटा नहीं है। सैयदा कहती है, मेरे शौहर जिस दिन आप गए उसी दिन से घर में आटा नहीं है। कहा, तो आपने कहा क्यों नहीं। कहा, आका कैसे कहती, आप सफर पे जा रहे थे, राहे खुदा में जा रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत डॉक्टर जौहर मियां सफियाबादी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मेंबर नूर पे हजरत तशरीफ लाए। आप अपने माथे की निगाहों से हजरत के चेहरे की जियारत करें और तशरीफ रखें मोहब्बत के साथ। हाँ माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हुजूर नकीबुल औलिया हजरत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां साहब किबला शफियाबादी तशरीफ ले आए। बस मुख्तसर सी गुफ्तगू मेरी सुने। मैं ये अर्ज कर रहा था, सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मेरे शौहर 15 दिन हो गए घर में आटा नहीं है, इसलिए मैं आपको कैसे रोटी बनाकर देती। सरकार मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बीवी के पास 15 दिन से खाने नहीं है। इन्होंने पूछा, मैं तो रो रही हूँ कि मेरा शौहर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब किबला भी तशरीफ ले आए। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब साहब एक बीवी की मोहब्बत देखे। शौहर के लिए खाना नहीं तो बीवी शौहर के मोहब्बत में रो पड़ी। शौहर इसलिए रो पड़ा कि मैं तो खाना खाता रहा, मगर 15 दिन से मेरी बीवी ने खाना नहीं खाया। कहते हैं सरकार मौलाए कायनात, ए मेरी शरीक हयात, तूने मैका खबर क्यों नहीं कर दिया। मैका से खाना आ जाता, पड़ोस में खबर क्यों नहीं कर दिया। सुनो, आज मेरी माँ बहनों, तेरे घर में थोड़ी सी गरीबी आ जाए तो शौहर की शिकायत शुरू कर देती हो। मैं
की बात ससुराल कहती हो, ससुराल की बात मैका कहती हो। जब से मोबाइल फोन ने जन्म लिया तब से फसाद फितना घरों में जन्म ले लिया। घर के लम्हे लम्हे की खबर अपनी बहन के यहाँ कहती हो, अपने माँ बाप से शेयर करती हो, सहेलियों के यहाँ शेयर करती हो। शौहर नहीं, पूरे घर ससुराल से लेकर मैका तक सबकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देती हो। लेकिन सुल्तान रजा का मशवरा सुनना, सुनो, सिर्फ खातूने जन्नत के नाम फातिहा कराने से इस्लाम की सच्ची शहजादी तू नहीं बन जाएगी। फातिहा कराना भी जरूरी है, लेकिन सीरत खातूने जन्नत का चराग भी घरों में जलाना जरूरी है। इसलिए सुनना, माशाअल्लाह हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी ये भी तशरीफ ले आए। इतनी बुजुर्ग हस्तियां आ रही है, गौर से सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा था। सैयदा फातिमतु ज़हरा कहती है, मेरे शौहर ये बात सच है, मैं मैका खबर करती तो खाना आ जाता, मैं पड़ोसियों के यहाँ कहती तो खाना आ जाता, मगर ए मेरे शौहरे नामदार, चलते वक्त मेरे बाबा जान ने कहा, ए बेटी अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ए मेरी बेटी, शौहर औरत के लिए, बीवी के लिए पर्दा है और बीवी शौहर के लिए पर्दा है। ए मेरी बेटी जा, लेकिन शौहर के भी पर्दे का ख्याल रखना, शौहर तेरे पर्दे का ख्याल रखे। ए मेरे शौहर, ए सरकार मौलाए कायनात, मैं मैका खबर कर देती, खाना तो मिल जाता, मगर मेरे मैका वाले जान जाते कि अली के घर में खाना नहीं है। मैं पड़ोसियों को खबर करती, खाना तो मिल जाता, मगर मेरे पड़ोसी जान जाते कि अली के बीवी के पास खाना नहीं है। ऐ मेरे शौहर, मेरा ईमान और अकीदा ये है, जो खुदा मेरे शौहर को अपनी राह में बुलाना जानता है, वो अली की बीवी को खाना खिलाना भी जानता है। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सुनो, माँ बाप की भी कदर करना। जब ससुराल जाना तो सास ससुर को माँ बाप की मोहब्बत और कदर के नजरिए से देखना। याद रखना, जिंदगी में माँ बाप की मोहब्बत के बगैर कोई कामयाब नहीं होता। जब मैके में रहना तो माँ बाप की इज्जत और आबरू का ख्याल रखना। ससुराल में कदम रखना तो याद रखना, शौहर की बात मैके में नहीं, मैके की बात ससुराल में नहीं, ससुराल की बात मैके में नहीं, शौहर की बात सहेलियों से नहीं। इससे माहौल बनता नहीं, बिगड़ता है। इस्लाम कहता है कि तेरा शौहर अगर उसके अंदर कोई कमी हो तो बीवी की जिम्मेदारी है मोहब्बत से उसकी इस्लाह करे। ऐसे ही शौहर की जिम्मेदारी है बीवी के अंदर कोई कमी हो तो बीवी की मोहब्बत से इस्लाह करे। यकीनन यही हमारी जिंदगी है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दूसरों के ऐब को छिपाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे ऐब को छिपाएगा। यकीनन आका फरमाते हैं, लोगों सुनो, याद रखना, आका की एक ऐसी सुन्नत जिस पे पूरी दुनिया अमल कर ले तो साहब जमाने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा, जमाने से नफरत की हवाएं मिट जाएगी। आप कहेंगे आका की वो कौन सी सुन्नत है? आका फरमाते हैं, लोगों खाना खाने से पहले पड़ोसियों के खाने का ख्याल रखना, पीने से पहले पड़ोसियों के पीने का ख्याल रखना, पहनने से पहले पड़ोसियों के पहनने का ख्याल रखना। याद रखना, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे मौला की पकड़ बहुत सख्त है। कल बरोज़े महशर तेरा रब तुझसे पूछेगा, बता मैं नंगा था तूने कपड़ा क्यों नहीं दिया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया। बंदे कहेंगे, मौला तू तो खाने पीने से पाक है। अल्लाह कहेगा, मैं नहीं खाता मगर मेरे गरीब बंदे तो खाते हैं, मैं नहीं पीता मगर मेरे गरीब बंदे तो पीते थे। अब सुनिए साहब, पड़ोसी है कौन? इन उलमाए किराम से पूछिए, फरमाएंगे तीन किस्म के पड़ोसी है। एक वो पड़ोसी जिसका तीन हक है, नंबर एक आपका हम मजहब है, नंबर दो आपका रिश्तेदार है, नंबर तीन आपका पड़ोसी है। एक वो पड़ोसी जो आपका रिश्तेदार नहीं, हम मजहब है और पड़ोसी है, और एक वो पड़ोसी जो आपका हम मजहब नहीं मगर आपका पड़ोसी है। अब आका फरमाते हैं, खाने से पहले जरा पड़ोसी की थाली भी देख लेना, पीने से पहले जरा पड़ोसी का प्याला भी देख लेना, पहनने से पहले जरा पड़ोसी का बदन भी देख लेना। ऐ मुसलमानों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तेरे पड़ोस में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन हो या ईसाई, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, तुम एक तंजीम बनाओ कि साहब जमाना चाहे
कुछ कहे, लेकिन हम कभी मोहब्बत के मियार को मिटने नहीं देंगे। हम उस सिवान की सरजमी के हैं जिन्हें हजरत साहब जहां के मुजाहिद आजादी हजरत मौलाना मजहरुल हक साहब किबला, आप उनकी जिंदगी को पढ़िए। पटना में आजादी के वक्त उन्होंने सदाकत आश्रम बनवाया। क्यों साहब? सदाकत ये उर्दू है और आश्रम ये हिंदू है। अब साहब एक घर का नाम सदाकत आश्रम रखा ताकि लोग जान जाए यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी जा रही है जात मजहब के नाम पर नहीं, बल्कि मुल्क की आजादी के लिए एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी जा रही है। आज भी इस मुल्क में जरूरत है मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के अमन और शांति के लिए हिंदू मुसलमान एक प्लेटफार्म पर मिलकर मुल्क की हिफाजत के लिए आगे बढ़े, ताकि मुल्क का माहौल ठीक हो, वातावरण ठीक हो, हम एक दूसरे से प्यार करें। मगर इस प्यार की सबसे पहली सीढ़ी का नाम यह है, हम खाने से पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, हम पीने से पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, हम पहनने से पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल करें। आपका हिंदू भाई भी पड़ोसी होगा, पूछेगा तो आप हर रोज मुझे खाने के लिए पूछते हैं, मैं बीमार पड़ता हूं तो दवा का भी इंतजाम करते हैं। ये बताइए आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बता दीजिए। मैं मोहब्बत करने के काबिल कहा था, मगर जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूं उस नबी ने हमें मोहब्बत करना सिखला दिया है, उस नबी ने हमें प्यार करना सिखला दिया है। यकीनन मेरे दोस्त आज जरूरत है पूरी दुनिया में फिर से किरदारे मुस्तफा के चिराग को रोशन करने की। जिस घर में याद रखिए, जिस घर में किरदारे मुस्तफा नहीं है आज हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं। जरूरत यह है कि हम बुजुर्गों से प्यार करें, इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चले, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब करें। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।